Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at online chemistry class. Chapter number 4 gases. Lecture number 3. The topics of today's lecture are equation of state for an ideal gas. Second point is the standard temperature and pressure. Third is the significance of the general gas equation. In the last, we will calculate the numerical value of R. Let's start from the first topic, that is the equation of state for an ideal gas. An equation that shows the effect of the simultaneous change in the pressure and temperature on the volume of a given gas is called the ideal gas equation. Students, if you remember, when we were discussing the postulates of the kinetic molecular theory, in the last postulate, we used that equation, which I told you the name of that equation was the ideal gas equation. And if you remember, the mathematical expression of that equation was the PV is equal to nRT. In today's topic, we will actually derive the PV is equal to nRT, which is also known as the general gas equation. How can we derive the general gas equation? Derivation of the ideal gas equation. Students, in our last lecture, we studied about the Boyle's law. If you remember, the mathematical expression of the Boyle's law was the volume is inversely proportional to the pressure. Then we discussed the Charles law. According to the Charles law, volume is directly proportional to the temperature. And in the last, we stated about the Avogadro's law, and according to the Avogadro's law, volume is directly proportional to the number of moles of the gases. Now, by combining these three gases, we can see, student, these three equations, we can see, students, here one factor is common, that is the volume. So can we write like this? By combining the three equation 1, 2 and 3, we can get that the volume is inversely proportional to the pressure, directly proportional to the number of moles of the temperature, directly proportional to the number of moles of the gas, and directly proportional to the temperature of the system. So we can write like this. Here, by removing the proportional sign, we will write the constant. The R is known as the general gas constant, and the equation is which I have written here, that is the PV is equal to nRT, that is known as the general gas equation or ideal gas equation, it is also known as. Okay, that is the first form of general gas equation. Now, if we consider n is equal to 1, अगर हम कहते हैं कि number of moles of the gas हमारे पास 1 है, so we can write PV is equal to RT, और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, अगर हम R की वैल्यू मालूम करें तो हम लिख सकते हैं PV over T. Now if the system is at initial stage, हम कंसिडर करते हैं P1 V1 is equal P1 V1 over T1 is equal to the R, and we consider it is an initial state of any system. So P2 V2 over T2, we consider that is the final state of the system. So we can write P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 and T2. That is known as the second form of the law. Okay, student? This one is known as the first form of the law. और ये जो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है इनिशियल और फाइनल स्टेट को इक्वल करके, so we can write that we can say that is the actually the final form of the law. ये है हमारे पास स्टूडेंट जनरल गैस इक्वेशन, which is also known as the ideal gas equation. Now, standard temperature and pressure. What is standard temperature and pressure? Ideal gas equation enable us to calculate the effect of a change in temperature and pressure on the volume of gas. One cannot compare the volume unless they are stated at the same temperature and pressure. Gas volume are usually compared at the 0 degree centigrade, which is also equal to the 273 Kelvin. That is actually the standard temperature, and 1 atmosphere is actually the standard pressure. So these conditions are referred to as standard temperature and pressure. तो जब भी स्टूडेंट हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा 273 केल्विन, और प्रेशर हमारे पास जो होगा दैट विल बी 1 एटमॉस्फेयर. एग्जाम्पल numerical. Here student, example is a certain mass of a gas occupy 1000 cubic centimeter at 57 degree centigrade temperature and 273 millimeter of mercury. What will be the volume at standard temperature and pressure? हमारे पास यहाँ पर आपको इनिशियल कंडीशन दे दी गई है आपको सिस्टम की, आपको वॉल्यूम गिवन है दैट इज़ द V1, आपको इनिशियल प्रेशर गिवन है दैट इज़ द P1, और इनिशियल टेम्परेचर हमें 57 गिवन है,
और 57 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमें ऑब्वियसली इसको कन्वर्ट करना है इनटू द केल्विन, तो हमारे पास 330 टेम्परेचर केल्विन में आ जाता है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट STP. STP मीन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास क्या है, दैट इज द 760 मिलीमीटर मर्करी एंड विच इज इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हमें तो पता है कि 1 एटमॉस्फेयर हमारे इक्वल होता है 760 मिलीमीटर मर्करी के, हमने 760 मिलीमीटर मर्करी क्यों लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी हमारे पास जो यूनिट है दैट इज़ द मिलीमीटर ऑफ मर्करी. याद रखिएगा, हमेशा आपके पास अगर दो प्रेशर की वैल्यूज़ गिवन है तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर दोनों टेम्परेचर की वैल्यूज़ गिवन है तो दोनों टेम्परेचर की यूनिट सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रेशर मिलीमीटर मर्करी में गिवन था, इसलिए हमने स्टैंडर्ड प्रेशर जो लिया है वो हमने 760 मिलीमीटर मर्करी लिया है विच इज़ इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेयर. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू, हमने तमाम वैल्यूज़ V1, P1 एंड T1 जो हमारे पास सेकेंड फॉर्म ऑफ द गैस लॉ था, हमने उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया और हमने इसके ज़रिए V2 कैलकुलेट कर लिया और V2 की जो वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज़ द 790.3. So the volume of the gas at STP will be 790.3 cubic centimeter. तो अगर हमें इनिशियल वैल्यूज़ गिवन हो टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम का, तो हम लोग फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द STP. होम असाइनमेंट सेल्फ चेक एक्सरसाइज 4.5 सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसीलिए आपको यहाँ पे होम असाइनमेंट में दिया गया है. आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, आपको यही सेकेंड फॉर्म ऑफ द गैस लॉ को अप्लाई करना होगा. Now come to the significance of the general gas equation. With the help of the ideal gas equation, we can determine the following. Number 1, molecular mass of the gas, and we can calculate the density of the gas. Molecular mass of the gas हम कैसे calculate कर सकते हैं? According to the general gas equation, PV is equal to nRT. हमारे पास जो यहाँ n given होता है, what is that? That is actually the number of moles. मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास. अगर मास को हम लोग कंसिडर करें इनटू द W, अगर हम W से मास ऑफ द गैस को कंसिडर करें और उसको डिवाइड करें मॉलिक्यूलर मास से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है n की. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन अबव इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर n की वैल्यू को पुट करते हैं और उसके बाद हम सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस का. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, अगर हमें मास गिवन हो और हमें आर की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम गिवन हो, तो हम इस तरह से मॉलिक्यूलर मास किसी भी गैस का कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक हमारे पास सिग्निफिकेंस है जनरल गैस इक्वेशन का कि अननोन गैस का हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंड हमारे पास क्या सिग्निफिकेंस है, डेंसिटी ऑफ द गैस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. डेंसिटी ऑफ गैस हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास वैल्यू PV इज इक्वल टू nRT है. n की वैल्यू हमें पता है दैट इज द मास ओवर मॉलिक्यूलर मास. बाय पुटिंग द वैल्यू इन द जनरल गैस इक्वेशन दैट इज इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास ये वैल्यू आती है. और अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं थोड़ा सा उसको अगर हम लोग एडजस्ट करें, तो हमारे पास W ओवर V की वैल्यू आ जाती है, दैट इज़ द मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम. वी नो वेरी वेल मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू द डेंसिटी. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन अबव इक्वेशन, यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू D को रख लेते हैं और अगर हमें D कैलकुलेट करना है, हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो RT की वैल्यू यहाँ पर MP के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी. तो इस तरह से हम लोग ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ द P, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, अगर हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर मास अगर हमें गिवन हो, तो हम किसी भी गैस की डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ द जनरल गैस इक्वेशन कि हम लोग जनरल गैस इक्वेशन के थ्रू मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस का, और इसके अलावा हम लोग यहाँ से डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. Now come to the numerical value of the R. What is R? अभी जनरल गैस इक्वेशन के अंदर जो हमने कांस्टेंट लिखा था दैट वाज द जनरल गैस कांस्टेंट. ठीक है, R जो है दैट इज नोन एज द जनरल गैस कांस्टेंट. द वैल्यू ऑफ R कैन बी कैलकुलेटेड इन द डिफरेंट वेज एज शोन बिलो. हम 3 तरह से R की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट आपके पास यहाँ पर है, इफ़ हमारे पास
If 1 mole of the gas is taken as the standard temperature and pressure, अगर हमारे पास वैल्यू टेम्परेचर हम लेते हैं 273 केल्विन में, प्रेशर हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर में, और इसके अलावा वॉल्यूम हम लेते हैं जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम होता है एट STP, दैट इज़ द 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर. तो अगर हम वॉल्यूम 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर लें, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लें, नंबर ऑफ मोल हम कंसिडर करते हैं दैट इज़ 1 मोल, टेम्परेचर 273, तो हम R कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू इन दिस अबव इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन. तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है R की, दैट इज़ अ 0.0821 क्यूबिक डेसीमीटर, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में है, एटमॉस्फेयर पर मोल एंड पर केल्विन. दैट इज़ द फर्स्ट वे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R. सेकेंड तरीके से भी हम लोग यूनिट चेंज करके भी हम ले सकते हैं. किस तरह से? इफ़ प्रेशर इज मेजर इन द मिलीमीटर ऑफ मर्करी और टॉर, और वॉल्यूम हम लेते हैं इन क्यूबिक सेंटीमीटर. तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो हम लोग यहाँ पर अगर 0.0821 को मल्टीप्लाई करें 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में, यू नो वेरी वेल 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो हमने एटमॉस्फेयर की जगह यहाँ पे 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की वैल्यू को पुट कर दिया. तो हमारे पास जो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा दैट विल बी 62.4 क्यूबिक सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर मोल एंड पर केल्विन. नाउ हमें कन्वर्ट करना है क्यूबिक डेसीमीटर को इनटू द क्यूबिक सेंटीमीटर. वी नो वेरी वेल दैट 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू द 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये बात आपको पता है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. हमारे पास इस वैल्यू के अंदर क्यूबिक डेसीमीटर में है 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इन द लास्ट वैल्यू आ जाती है 62400 क्यूबिक सेंटीमीटर. हम टॉर में भी लिख सकते हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्करी में भी, क्योंकि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू द 1 टॉर. तो 624 क्यूबिक सेंटीमीटर टॉर पर मोल और पर केल्विन, और इसी की जगह पर हम लोग यहाँ पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी लिख सकते हैं. तो अगर हमें प्रेशर दिया जाए मिलीमीटर ऑफ मर्करी या टॉर में दिया जाए, वॉल्यूम हमें क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया जाए, तो हम R की वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में जब पुट करेंगे तो हम 62400 रखेंगे. ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड फॉर्म या सेकेंड वे था R की वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करने का. थर्ड वे, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास SI यूनिट की अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें, SI यूनिट में अगर हमें वॉल्यूम दे दिया जाए तो हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू द 0.0224 क्यूबिक मीटर. वी नो वेरी वेल 1 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल टू द एक्सपोनेंट -3 क्यूबिक मीटर. प्रेशर हमें दे दिया जाए 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. मोल हमें दे दिया जाए 1. टेम्परेचर हमारे पास 273. तो अगर हम तमाम वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं इस तरह से, तमाम वैल्यूज़ को पुट करें और फिर उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेट करके जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन. न्यूटन मीटर हमारे पास कैसे आया? अगर हम इनको कैलकुलेट करें क्यूबिक मीटर को और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास न्यूटन मीटर की वैल्यू आ जाती है. ठीक है, वी नो वेरी वेल 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू द 1 जूल. तो हम न्यूटन मीटर की जगह पर, इस न्यूटन मीटर की जगह पर हम लोग 1 जूल भी लिख सकते हैं. सो वी कैन से दैट द R इज इक्वल टू 8.3143 जूल पर मोल पर केल्विन. SI यूनिट के अंदर अगर हमें वैल्यूज़ गिवन हो तो हम R की ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे. ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है कि हमने न्यूमेरिकल में जनरल गैस कांस्टेंट की कौन सी वैल्यू को पुट करना होगा. ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह से करते हैं. Okay, now come to the example 4.12. We have a numerical value. For numerical question, if we have the 4 gram of the methane at 27 degree centigrade temperature and pressure of the 2.5 atmosphere occupy a volume of 2.46 cubic decimeter, calculate the value of R. वैल्यू ऑफ R हमें कैलकुलेट करनी है. किस तरह से अब हम करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हमें सबसे पहले कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT के अंदर आपको R कैलकुलेट करना है. ठीक है, R कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो N की वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 4 ग्राम गिवन है, उसको डिवाइड करें मॉलिक्यूलर मास से 16 से. मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है
उसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो n की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1/4 मोल्स। टेम्परेचर हमारे पास गिवन है दैट इज़ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको कन्वर्ट कर दिया केल्विन में, 300 हो गया। प्रेशर हमारे पास 2.5 एटमॉस्फेयर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। वॉल्यूम हमारे पास 2.46 क्यूबिक डेसीमीटर गिवन है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द आर। तमाम वैल्यूज़ हमें गिवन है। फॉर्मूले के अंदर आपने वी, वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर की वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है दैट इज़ R इज इक्वल टू 0.0821 क्यूबिक डेसीमीटर एटमॉस्फेयर पर मोल एंड पर केल्विन। इसी तरह के स्टूडेंट्स और आपके जो क्वेश्चन है सेम आपको यही जनरल गैस इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। होम असाइनमेंट के लिए आपको दिया जा रहा है एग्जाम्पल 4.10, एग्जाम्पल 4.11, एग्जाम्पल 4.13 to 15 और एक्सरसाइज में से जो आपके क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर आज का लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। हमने आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े जिसमें हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की दैट वाज द डेरिवेशन ऑफ द जनरल गैस इक्वेशन एंड इन द लास्ट हमने जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया। जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आर को एक्चुअली हमने कैलकुलेट किया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।